All right, so we'll start with question number 15 today. A double slit arrangement produces interference fringes for sodium light. Lambda is equal to 589 nanometer that are 0.20 degree apart. What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in water? गिवन डेटा में आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया है 589 नैनोमीटर मतलब 10 पावर माइनस 9 मीटर और आपको बेसिकली उन्होंने see the thing is a double slit arrangement produces interference fringes and these fringes are 0.20 degree apart मतलब fringe width दिया है in terms of angle तो आपको angular separation दिया हुआ है basically मतलब angular fringe width दिया हुआ है basically you have been given fringe width but angular fringe width ये पता होना चाहिए so you have been given theta 1 as 0.20 degree okay then रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है मैं इसको NW से डिनोट कर देता हूँ 1.33। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था अगर इसको मैंने पूरे के पूरे सेटअप को अगर मैंने पानी में डाल दिया सो इफ आई इमर्स दिस इन वाटर देन व्हाट विल बी द सेपरेशन मतलब व्हाट विल बी द एंगुलर सेपरेशन इन दैट केस ऐसा आपको पूछा है सो व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट इज आपको फाइंड क्या करना है थीटा 2 मतलब जब मैं ये पूरा का पूरा सेटअप इफ आई पुट इट इनसाइड वाटर what will be the angular fringe width, right? This is what you're supposed to find. Then what we have learned, हमने क्या सीखा है अब तक? We have learned that x is equal to a sin theta. Okay, आपको पता है फ्रिंज विड्थ निकालते वक्त where a ये a क्या है पता होना चाहिए आपको a या फिर कैपिटल D जो भी यूज करते हो so let me put it as capital D sin theta. This is what we know. What is this x? ये पता होना चाहिए ये x क्या होता है ये पता होना चाहिए ये हमारा बहुत बार हुआ है this x is nothing but the distance from the center okay in terms of angle ये जो x है ये distance of bright fringe from the center ये हम लोगों ने किया था by the way तो हमको जब ये सेटअप एयर में होगा तब x1 मिल जाएगा d अपॉन साइन थीटा 1 d चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप पानी में डाला है हम लोगों ने फिर वो सेटअप पानी में हो या एयर में हो द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स नेवर चेंज है ना हमारे पास एक सोर्स था दो स्लिट थी फिर एक स्क्रीन था तो अगर मैंने पूरे के पूरे सेटअप को पानी में इमर्स कर दिया है आई एम नॉट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट ओके एंड if everything is inside water तो 2 suffix 2 मतलब for water d sin theta 2 अब मैं क्या करूंगा मैं इसका रेशियो ले लूंगा x2 by x1 is equal to sin theta 2 by sin theta 1 dd कैंसिल हो गया right but what we know is ये जो x है if you remember this distance was proportional to lambda d by d distance of nth bright fringe from the center was n lambda d by d something like that so ये x is proportional to lambda d by d good but as I told you पूरा का पूरा सेटअप अगर हम लोगों ने पानी में इमर्स कर दिया है तो स्मॉल d मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन दिस बोथ आर कांस्टेंट्स हम इसको चेंज कर ही नहीं रहे हैं therefore what you can say is x is proportional to lambda क्योंकि स्मॉल d और कैपिटल D they are constant इसलिए मैं लिख सकता हूँ therefore I'll call this equation number 1 therefore x2 by x1 is equal to lambda 2 by lambda 1 equation number 2
So from 1 and 2, what I can write is x2 by x1 is equal to lambda 2 by lambda 1 is equal to sine theta 2 by sine theta 1. Correct. This is what you should know. Therefore, what we can write is sine theta 2 is equal to lambda 2 by lambda 1 into sine theta 1. What we can do here is, but what we know is, आपको अगर पता होगा, इसलिए मैंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is wavelength of light in air upon wavelength of light in water, मतलब medium 2. So lambda 1 by lambda 2 is refractive index. Lambda 1 by lambda 2 is refractive index. Wavelength in air or vacuum to that of wavelength in medium. This is the definition of refractive index. Therefore, what you can get is sin theta 2 is equal to, ये आ गया आपका sin theta 1 upon NW. NW is refractive index of water. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 है, तो लैम्डा 2 को मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा एंड आई राइट डाउन दिस एज NW. सिंपल. Sin theta 1 we can find out because from here I can have sine of theta 1 that is equal to sine of 0.20 degree and that happens to be ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, otherwise you can calculate what is sine of 0.20 degree. Let me check. Sine of 0.20 is around 3.5 into 10 power minus 3, around roughly 3.5 into 10 power minus 3 divided by 1.33 divided by 1.33. So it is around 2.6 into 10 power minus 3. So this turns out to be around 2.6 into 10 power minus 3. फिर थीटा 2 आप फाइंड करोगे साइन इनवर्स लेके. सो साइन इनवर्स ऑफ 2.6 into 10 power minus 3 एंड इफ यू डू दैट तो आपको मिलेगा थीटा 2 की वैल्यू 0.15 डिग्री. हो गया. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए थे. सो इन द बेसिक फॉर्मूलाज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमको करना क्या था, हमको सिर्फ देखना था कि फ्रिंज विड्थ इन एयर टू दैट ऑफ वाटर, इसका रिलेशन क्या है. तो you have obtained the relation over here in terms of wavelength lie, क्योंकि फिर in terms of wavelength लाने के बाद you can write it in terms of refractive index. तो ये formula important था. That's it. This is what you must have known, right? Sin theta 2 equal to sin theta 1 upon refractive index. दिया क्या है? A double slit arrangement produces interference fringes for sodium light that are 0.20 degree apart. मतलब fringe width आपको दे दिया है, angular fringe width आपको दिया हुआ है. That's what they are trying to tell you, that you have angular fringe width. Okay, good. उससे हम लोगों को, अगर हमने पूरा सेटअप को पानी में इमर्स कर दिया तो फ्रिंज विड्थ क्या, नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा? एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात चल रही है यहाँ पे. So we have found it to be 0.15 degrees. Simple question था. Next question. In a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of an eyepiece at 1.2 meter from the slits. The distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.4 centimeter. When a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece 90 centimeter from the eyepiece, the distance between the two virtual
magnified images is found to be 0.9 centimeter. Determine the wavelength of the light used. Okay, so this question is going to be little tough because in the new updated syllabus ये topic ही हटा दिया गया था. So I will just take the theory, required theory for this, otherwise question solve नहीं कर पाओगे. देखो, if you remember बायोप्रिज्म एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद होगा, हमारे पास एक बायोप्रिज्म था, हमारे पास एक स्क्रीन था समवेयर हियर. हम स्क्रीन हटा देंगे, स्क्रीन की जगह पे हम लोग आईपीस यूज करेंगे. क्यों आईपीस? क्योंकि हम लोग ये जो पूरा पैटर्न बनता है उसको एक माइक्रोस्कोप मतलब आईपीस के थ्रू देखते हैं. तो इंस्टेड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न इन दिस केस बीइंग फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ये स्क्रीन की जगह पे आई पीस, जिसमें से आप देख रहे हो ना माइक्रोस्कोप का आई पीस, वहां पे बन रहा है. फिर हमको पता है कि बायोप्रिज्म में हमारे पास सोर्स तो एक ही होता है एस, बट इट अपीयर्स दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम टू वर्चुअल सोर्सेस S1 एंड S2. करेक्ट? ये आपको पता होना चाहिए. यू आर सपोज टू नो दिस. इतना आपको पता होना चाहिए. नाउ व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, वो आपको बता रहे हैं कि हमने बाइप्रिज्म, ये बाइप्रिज्म और आईपीस, इसके बीच में एक लेंस इंट्रोड्यूस किया है. When a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece, ये लेंस इंट्रोड्यूस किया है. ये क्यों किया है? There is something called as conjugate foci method. Conjugate foci method. देखो इशू कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये जो दो सोर्सेस है S1 एंड S2, these are two virtual sources. virtual मतलब ये रियल नहीं है, they don't exist really. हमको ऐसा दिखता है that the light is coming from S1 एंड S2. याद करो बायोप्रिज्म, मैंने बताया था बायोप्रिज्म में ऐसा रेज आएगा, फिर ये बेंड होगा, फिर स्क्रीन पे मतलब यहाँ पे आई पीस पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, इस केस में आई पीस पे बनेगा, फिर यहाँ से भी लाइट आएगा एंड इट विल बेंड समथिंग लाइक दिस, इट विल बेंड समथिंग लाइक दिस ओवर हियर. और ये जो है ये आपका इंटरफेरेंस रीजन था. फिर हम लोग बोलते हैं कि इंटरफेरेंस के लिए दो लाइट सोर्सेस चाहिए, हमारे पास तो एक ही सोर्स है. फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब जो रेज ऑफ लाइट है, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं. And then we say that it appears that the light is coming from two virtual sources S1 and S2. Virtual because light appears to be coming from, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एनालॉजी है, डोंट कंफ्यूज इट विथ दिस थिंग. हमारे पास सन का लाइट कम आ रहा है फॉर एग्जांपल, ओके, और हमको सनलाइट चाहिए. हमने एक बड़ा सा मिरर लगा दिया है ना टेरेस पे, राइट, या तो फिर आसमान में उसको लटका दिया कहीं, तो वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेजेगा, राइट. इज दैट अ रियल सोर्स? नो, दैट इज अ वर्चुअल सोर्स. तो मैं जस्ट एनालॉजी बोल रहा हूँ. इट अपीयर्स, ऐसा लगेगा कि सन वहां पे ऊपर है जहाँ पे मिरर लगाया है, क्योंकि हम लोग सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि इट अपीयर्स दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेज इंस्टेड ऑफ वन. मतलब ये वर्चुअल सोर्स है, रियल नहीं है. अगर ये सोर्सेज रियल होते तो मैं यहाँ पे एक स्केल लगा के इन दोनों का डिस्टेंस d मैं मेजर कर लेता, बट तो रियल है ही नहीं. अब जब रियल है नहीं तो डिस्टेंस मेजर कैसे होगा? फिर उसके लिए एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई मेथड.
व्हाट इज दिस कॉन्जुगेट फोकाई मेथड? हमको पता है किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं, एनी लेंस हैज टू फोकस, है ना। तो पहले तो ये सोर्सेस मैं यहाँ दिखा देता हूँ, S1 एंड S2, करेक्ट। अब सपोज यहाँ पे लेंस का पहला फोकस है, करेक्ट। याद रखना इन दोनों में डिस्टेंस था D, ये लेंस का पहला फोकस है। मैं पहले फोकल पॉइंट पे लेंस को रख रहा हूँ, आई एम प्लेसिंग इट देयर, और यहाँ पे एक स्क्रीन है या तो आई पीस है, हमारे केस में अभी आई पीस है, इन आर केस वी हैव आई पीस, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्क्रीन और आई पीस, नॉट टू गेट कंफ्यूज, इसलिए स्क्रीन और आई पीस, ओके राइट गुड। तो मैं फिलहाल आई वांट टू रिमूव बोथ ऑफ दिस आल्सो दिस। होगा क्या, होगा क्या, ये S1 और S2 जो वर्चुअल सोर्सेस है इसके इमेजेस बनेंगे, क्योंकि जब भी लेंस से लाइट पास होता है इमेजेस फॉर्म। तो ये जो वर्चुअल सोर्सेस है, जब लेंस में से लाइट पास होगा तो इसके दो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा यहाँ पे। सो S1 डैश एंड S2 डैश आर द इमेजेस। मैं बाकी रे डायग्राम वगैरह 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 ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रॉइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू बेसिक्स। मान लेते हैं कि S1 और S2, S1 डैश और S2 डैश डिस्टेंस इज D1। हमको पता है बेसिकली ऑप्टिक्स, ऑब्जेक्ट टू लेंस डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं U, लेंस टू इमेज डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं V, ओके। सो ऑब्जेक्ट टू लेंस डिस्टेंस इज U एंड लेंस टू इमेज डिस्टेंस इज V, राइट। और एक चीज हमको पता होनी चाहिए, दैट इज दिस साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज is equal to image distance upon object distance। इमेज साइज कितना है D1, साइज 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 S1 डैश और S2 डैश का डिस्टेंस, दैट इज इमेज साइज। साइज ऑफ द इमेज कितना है D1, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है D, इमेज डिस्टेंस कितना है V, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है U। इक्वेशन नंबर 1, ओके राइट। अब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं की, so मैं आपको रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ यहाँ पे। अब कॉन्जुगेट फोकाई मेथड है, तो कॉन्जुगेट भी करो। कॉन्जुगेट मतलब अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेंस को मूव करेंगे। ये S1 और S2 आपके पास वर्चुअल सोर्सेस थे, इन दोनों का डिस्टेंस D है। अब हमने लेंस को रखा है यहाँ पे उसके सेकेंड फोकल पॉइंट पे। नाउ वी आर प्लेसिंग द लेंस एट इट्स सेकेंड फोकल पॉइंट, और इस केस में आपको इमेज मिलेगा डिमिनिश्ड, मतलब इस केस में आपको मिलेगा इमेज साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, ये D2 आ गया। और ये कब होता है, ये कब होता है जब एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो जाए। मतलब अब ऑब्जेक्ट टू लेंस डिस्टेंस जो होगा वो बन जाएगा V, और लेंस टू इमेज डिस्टेंस जो होगा वो बन जाएगा U, ओके। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो गया, मतलब लेंस जो है वो अपने सेकेंड फोकल पॉइंट पे है अब, तभी होगा वो। तो उस केस में इमेज साइज जो है वो छोटा हो जाता है ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया तो, और वापस फिर मैं वही यूज करूंगा, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस
अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज साइज यहाँ पे d2 है, ऑब्जेक्ट साइज यहाँ पे d है, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे v है, क्योंकि डिस्टेंसेस ये इंटरचेंज हो गए। इक्वेशन 2, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट, multiplying equation 1 and 2, I get d1 d2 अपॉन d स्क्वायर। तो d1 अपॉन d, d2 अपॉन d मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया, v बाई यू, u बाई v, कैंसल 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 कैंसल, तो मुझे मिल गया d स्क्वायर इक्वल टू d1 इंटू d2, तो मुझे मिल गया d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d1 इंटू d2। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द डिस्टेंस, ओके, बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस। बाय द वे, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना तो नहीं लगने वाला है। It was just to tell you कि how do you find out distances between two virtual sources by conjugate Fokai method. We will not need this much. Okay, हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है. Good. But still, I wanted to do it now. ऐसा है, अब इतना आपको समझा है, तो अब ये क्वेश्चन को मैं लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, so that you will understand why we have done all this thing. Okay, so now according to the given question, just a minute. Right, अब according to the given question, in a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slit. मतलब हम लोगों को स्लिट से लेके आईपीस, मैंने ऑलरेडी बताया कि इससे पहले के स्लाइड पे, दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हमेशा आप पैटर्न स्क्रीन पे देखो, आप पैटर्न आईपीस में देख सकते हो, राइट। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, बारिश के दिन में आप चल रहे हो, रास्ते पे चलते चलते ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं आपको, रोड पे दिखता होगा ऐसा रेनबो टाइप, राइट। वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। वो इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ बना, राइट साइड और रेटिना, तो आपकी आंख मतलब स्क्रीन हो गई अब। तो ये जो है हमेशा इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे ही देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो स्लिट से आईपीस डिस्टेंस मतलब स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। The distance between the central bright band and the 20th bright band, अगर आपको याद होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में, if you remember, this was interference pattern something like this। ये सेंटर है जो हमेशा ब्राइट होता है, उसके बाद आपके पास होता है डार्क बैंड, उसके बाद आपके पास होता है डार्क बैंड, तो समथिंग लाइक दिस यू हैव ओवर हियर, दोनों साइड्स पे, ओके, बोथ साइड्स पे आपका डार्क होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट डार्क बैंड एंड ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी आपका ब्राइट, सॉरी डार्क बैंड होगा, फिर वापस से ब्राइट होगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो समथिंग लाइक दिस, गुड इनफ, ओके। अब आपको बोला है सेंट्रल ब्राइट बैंड के सेंटर से ट्वेंटियथ ब्राइट बैंड तक का डिस्टेंस, मतलब उसमें 20 फ्रिंजेस आ गए। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड आपको याद होगा, एक ब्राइट बैंड फिर नेक्स्ट ब्राइट बैंड, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हुआ था हम लोगों ने, फ्रिंज विड्थ कैपिटल एक्स, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। तो अब सेंटर से 20th ब्राइट बैंड मतलब कितने फ्रिंजेस आ गए, 20 फ्रिंजेस आ गए। तो ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को
ये जो डिस्टेंस है यहाँ से तो 20th मतलब x20 जो दिया है, x20 जो आपको दिया है, देखो कैपिटल X और x20 में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो इसको x बोलो ही मत, you better call this as W. Fringe width is W. If you are getting confused, सेंटर से, सेंट्रल ब्राइट बैंड के सेंटर से नेक्स्ट ब्राइट बैंड, फर्स्ट ब्राइट बैंड के सेंटर तक फ्रिंज विड्थ, सेंटर से 20th ब्राइट बैंड तक का डिस्टेंस x20। फिर हमको क्या दिया है, हमको दिया है x20। x20 कितना दिया है, 0.4 सेंटीमीटर, मतलब कितना, 4 इंटू 10⁻³ मीटर, राइट, गुड। और हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि x20 मतलब सेंटर से लेके तो 20th ब्राइट बैंड, 20th ब्राइट बैंड, सेंटर से लेके तो 20th ब्राइट बैंड तक 20 फ्रिंज विड्थ आ गए, क्योंकि 20 फ्रिंजेस तो आएंगे ही। मैंने कल भी सॉल्व किया था एग्जाम्पल, हम लोगों ने कल ही देखा था जब 15 ब्राइट फ्रिंजेस और 14 डार्क फ्रिंजेस की बात की थी हम लोगों ने, तो ये तो आने वाला है। तो सेंटर से 20th ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस में 20 फ्रिंज विड्थ आ गए। इसका मतलब मुझे यहाँ से फ्रिंज विड्थ तो मिल ही जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ मेरा आएगा x20/20। व्हाट इज x20, 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 20, 1 जा 5 जा, 1/5 इज 0.2, मतलब 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये आ गया आपका फ्रिंज विड्थ। आगे, when a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece 90 centimeter from the eyepiece, 90 centimeter from the eyepiece, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन बाइप्रिज्म, यहाँ पे आई पीस था, ये बाइप्रिज्म था, यहाँ पे सोर्सेस थे, वर्चुअल सोर्सेस थे। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल सोर्सेस और बाइप्रिज्म दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस, मतलब जो हम लोग कैपिटल डी मेजर करते हैं, क्योंकि आईपीस एक्ट्स एज द स्क्रीन, तो ये कैपिटल डी आप यहाँ से मेजर करो या फिर आप S1 S2 से मेजर करो, इट इज मोर और लेस द सेम थिंग, करेक्ट। तो यू हैव टू नो दिस थिंग। अब इन्होंने आईपीस प्लेस किया है 90 सेंटीमीटर, सॉरी इन्होंने लेंस प्लेस किया है 90 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस, मतलब लेंस इज प्लेस्ड समवेयर ओवर हियर, गुड। मैंने ऑलरेडी बताया था ये होता है आपका इमेज डिस्टेंस, मतलब V1 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, और कैपिटल डी तो ऑलरेडी हमको 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैसे, डी इक्वल टू 1.2 मीटर बोला है ना, 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, गुड, वो हमको ऑलरेडी दिया हुआ था 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर, मतलब V1 आपको दिया है 90 सेंटीमीटर। अगर V1 आपको 90 सेंटीमीटर दिया है तो डायग्राम से दिख रहा है कि ये U1 है, राइट। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बाइप्रिज्म एंड द eyepiece। देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट इज, आई कैन फाइंड U1 मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज D minus V1, that is 120 minus 90, that is 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। और इन सबको मैं मीटर में लिख लूंगा। देयरफॉर हमारे पास डेटा क्या आ गया, D इज इक्वल टू 8.2 मीटर, V1 इक्वल टू 90 मतलब 0.9 मीटर, U1 इक्वल टू 30 मतलब 0.3 मीटर। इतना मिल गया, इतना मिल गया। तो अब व्हाट वी कैन डू इज, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, we know that
व्हाट वी नो इज, यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इमेज का साइज बनेगा, ओके, इमेज साइज जो बनेगा दैट इज, हमको दिया है यहाँ पे, देखो बोला है the distance between the two virtual magnified images is found to be 0.9 centimeter. Distance between two virtually magnified image 0.9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को पहले ही मीटर में कन्वर्ट करके लिख दो। मतलब आपको D1 दिया है, ये वर्चुअली मैग्नीफाइड है, D1 दिया हुआ है आपको, D1, ओके, मतलब वर्चुअली मैग्नीफाइड आपको साइज दिया हुआ है उसका, मैंने ऑलरेडी बताया इसलिए कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, ओके। वी नो दैट, क्या पता है हमको, हमको पता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, राइट, तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? इजी, इमेज साइज, इमेज साइज मतलब D1, ऑब्जेक्ट साइज मतलब D, इमेज डिस्टेंस मतलब V1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब U1। गुड, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, स्मॉल डी, क्योंकि वो पूछा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड पे भी आएंगे हम लोग। ओके, पहले डी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डी इज इक्वल टू U1 बाय V1 टाइम्स ऑफ D1। ओके, गुड, ओके, तो D इज इक्वल टू व्हाट इज U1, 0.3 मीटर, व्हाट इज D1, 0.9 into 10 power minus 2 meter. What is V1? 0.9 meter. Cancel, cancel. मतलब 3 into 10 power minus 3 आपको मिल गया स्मॉल d, 3 into 10 power minus 3 मीटर में, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस। तो ये मिल गया, ओके। अब इतना मिलने के बाद व्हाट वी कैन डू इज, गुड, हमारा इंटरेस्ट था टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड कैसे फाइंड करने वाले हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, हमको, डू वी नो फ्रिंज विड्थ W इज इक्वल टू, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद है क्या आपको? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, लैम्बडा इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ इनटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो फ्रिंज विड्थ इसलिए मैंने कैलकुलेट किया वहां पे, सिर्फ कुछ डेटा दिया है उसमें से फ्रिंज विड्थ निकालना है, इसका ये इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन ये था कि फ्रिंज विड्थ हमको यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट लैम्बडा, इसलिए मैंने पहले फ्रिंज विड्थ निकाल के रख दिया 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, और स्मॉल डी की भी जरूरत थी इसलिए स्मॉल डी फाइंड किया, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, और कैपिटल डी तो दिया था आपको 1.2 मीटर में, ऑफ कोर्स। तो सॉल्व करो, 1 जा 6 जा 6 बाई 12, 6 बाई 12 इज 1.1 बाई 2, 1 बाई 2 1 बाई 0.2, ऊपर 10 आ गया, ऊपर 10 पावर माइनस 6 बचा, और नीचे 1 बाई 2.5, 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 आया ये, मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर है आंसर। तो 5000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ होगा, ओके। तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट फोकाई मेथड क्या होता है, मैंने पूरा ही कंप्लीट कर दिया, हमको तो पूरा नहीं चाहिए था कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, बट आई हैव टोल्ड यू कंप्लीट, क्योंकि ले ही रहा था तो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू। तो थिंग इज, हमको चाहिए वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है फ्रिंज विड्थ कैपिटल स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, कैपिटल डी दिया है, फ्रिंज विड्थ नहीं दिया है, स्मॉल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज नहीं दिया है, तो फ्रिंज विड्थ तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये गिवन इंफॉर्मेशन है। डिस्टेंस ऑफ द 20th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर x20 दिया है,
तो सेंटर से 20 ब्राइट फ्रिंज के 20 ब्राइट फ्रिंज के बीच में 20 फ्रिंजेस आएंगे, तो 20 फ्रिंज विड्थ हो गया, x20 is 20 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, मैंने नीचे डायग्राम में इसलिए ड्रॉ करके दिया है आपको। गुड, राइट, तो फ्रिंज विड्थ मिल गया। प्रॉब्लम था ये जो वर्चुअल सोर्सेस का डिस्टेंस है वो फाइंड करने का प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन समझो, उसमें इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे आया ये पता होना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रे ऑप्टिक्स 11 वहां पे है, ये उसमें से आता है ये। So this is how you find out small d, and you have small d, you have fringe width, you have capital D, and you can find out lambda also. Okay, तो इतना पता होना चाहिए तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। And this thing over here, I am going to delete this, and I'm going to write here conjugate foci method to find out conjugate foci method to find out distance between two virtual sources। तो वो अभी आप देख लोगे। Then okay, just a minute, this was 18th, okay, 19th question, that is, this is simple one, this is nothing difficult over here। In Fraunhofer diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meters, screen is placed at a distance of 2 meters from the lens to obtain the diffraction pattern, capital D दे दिया है आपको। If the slit width is 0.2 mm, 0.2 mm, 2 into 10 power minus 4 meters, and the first minimum is 5 mm on either side of the central maximum, so you should remember first minimum is 5 mm on either side of central maximum। आपको याद होना चाहिए हमने width of central maximum निकाला था। You need to remember ये जो width था, if you remember ये central maximum का width था। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि slit और lens they are almost at the same distance। तो लेंस से स्क्रीन या फिर स्लिट से स्क्रीन, ये डिस्टेंस हम लोग इसको f बोले थे, और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने d बोला था, और हमने बाद में बोल दिया था कि d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f। ठीक है, अब स्लिट विड्थ दिया है, द फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब आपको याद होगा ये डिस्टेंस मैंने x माना था, आप x लिखो y लिखो फर्क नहीं पड़ता है, ये x और x ऑन ईदर साइड, मतलब आपको x बताया है 5 mm ऑन ईदर साइड, मतलब सेंटर से लेके फर्स्ट मिनिमम तक का डिस्टेंस ये आपको दिया है। गुड, अगर आपको ये पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। एंड बाय द वे you should know that distance, how do you find out this distance? अगर ये याद नहीं है तो आपको कम से कम ये याद होना चाहिए कि width of central maximum, width of central maximum, ठीक है, I will just write down what we are supposed to find out। What we are supposed to find out is lambda formula। formula था width of central maximum is w
इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x दिख रहा है हमको टोटल ये, राइट। बट व्हाट वाज x? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज x? अगर x नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यू नीड टू नो व्हाट वाज x। यू मस्ट रिमेंबर, ये जो x हमने डिराइव किया था ये लैम्बडा d बाई a था, ये पता होना चाहिए आपको। गुड, अगर ये पता है तो व्हाट यू कैन डू इज, अभी इजी है, आप इसको इक्वेट कर लो इतने पार्ट को और सॉल्व करो, राइट। जरूरी नहीं है आपको, यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जरूरी नहीं है। और यू कैन डायरेक्टली से, और देखो सेंटर से फर्स्ट मिनिमा और डिस्टेंस बिटवीन central maximum and the first minimum, central maximum and the first minimum is x is equal to lambda d by a, ये भी चलेगा। तो जो आपको याद रहे वो x इक्वल टू लैम्बडा डी बाई ए हमने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकालते वक्त ही प्रूव किया था। तो व्हाट एवर यू रिमेम्बर, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम याद है तो आएगा तो वही ना, टू टू कैंसिल होगा बाद में, तो x इक्वल टू लैम्बडा डी बाई ए आएगा। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू यूज फर्स्ट मेथड और वट एवर इट इज, जो भी आपको याद रहेगा। तो x इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई ए आया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स ए बाई डी होगा, और x की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ a की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴ और d की वैल्यू 2, तो हो गया कैंसल कैंसल। लैम्बडा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सिर्फ मैं 3 पावर एडजस्ट किए हैं, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम आ गया आपके पास। आंसर इज करेक्ट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा था। जब तक आप कंप्लीटली समझ नहीं रहे हो क्वेश्चन को, जब तक आप कंप्लीटली कनेक्ट नहीं कर रहे हो पैटर्न कैसा दिखेगा, फिर हमने सेंटर से पहला मिनिमा का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया था, सो ऑन सो फोर्थ, इफ यू डोंट डू दैट तो मुश्किल है। तो यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the intensity of light coming from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity coming from the other। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट था क्या, पहले वो याद कर लो। हमारे पास 2 स्लिट्स थे, S1 स्लिट, S2 स्लिट, और हमारे पास एक स्क्रीन था। यहाँ से जो वेव आ रहा है उसका इंटेंसिटी I1 है, और दूसरे से जो आ रहा है उसका इंटेंसिटी I2 है। हमको गिवन डेटा में बोला है कि एक किसी भी एक में से जो इंटेंसिटी इट इज ट्वाइस द अदर, मतलब आपको बेसिकली I1 बाई I2 इक्वल टू 2 ऐसा बोला है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज of the bright and dark fringes in the resulting interference pattern। तो आपको पता है जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखता है वहां पे, ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। मतलब आपको बेसिकली आई मैक्स अपॉन आई मीन पूछा है। आई मैक्स मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंजेस का इंटेंसिटी, और आई मिनिमम मतलब डार्क फ्रिंजेस का इंटेंसिटी, उसका रेशो पूछा है। और आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दिया था जो आपके न्यू टेक्स्ट बुक में कवर नहीं है, बट मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते लगेगा हमको। इफ यू रिमेंबर दैट इट वाज आई मैक्स अपॉन आई मीन is equal to
r plus 1 upon r minus 1 का square, where I have told you where r is ratio of amplitudes. Okay, right. तो ये अब काम में आएगा कैसे? What we know is, we know that intensity is proportional to amplitude square. Therefore, I1 upon I2, intensity of the first source to that of second source, is equal to amplitude A1 upon A2 का square. But A1 upon A2 is R, so R square. Therefore, ratio of amplitudes R is nothing but under root of I1 by I2. Therefore, I1 by I2 is nothing but root of 2. Therefore, Imax by I mean, which is equal to R plus 1 upon R minus 1 whole square, that is equal to under root of 2 plus 1 upon under root of 2 minus 1 ka square, that is equal to under root of 2 is 1.414 plus 1 upon 1.414 minus 1 ka square, that is equal to 2.51 1.414 plus 2.414 upon 0.414 का square. So this thing I am doing it on calculator, but you're supposed to do it from log table. So 2.414 divided by 0.414, 5.83, उसका square कर लिया तो 33.99, तो roughly 34 आएगा. So that is 33.99, मतलब approximately 34, और आंसर में 34 दिया हुआ है, करेक्ट है. तो अगर ये आपको Imax by I mean इक्वल टू R plus 1 upon R minus 1 फॉर्मूला डिराइव नहीं करके दिया होता, तो फिर you have to put more efforts in solving the same question, right? So this is how you are going to solve this. Next question, 21st. This is a very simple question. A parallel beam of green light of wavelength lambda is equal to 546 into 10 power minus 9, क्योंकि नैनोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. passes through a slit of width 0.4 mm, मतलब उसको मैं अगर 0.4 mm को मैं अगर कन्वर्ट करके मीटर में लिखूंगा तो 4 into 10 power minus 3 मीटर आएगा. The intensity of transmitted light is seen on a screen which is 40 centimeter away. 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर होता है. What is the distance between the two first order minima? What is the distance between the two first order minima? Two first order minima मतलब width of central maxima पूछा है. ये देखो, ये पहला ऑर्डर मिनिमा यहाँ पे, दूसरा ऑर्डर मिनिमा यहाँ पे, मतलब दे आर इनडायरेक्टली आस्किंग यू व्हाट इज width of central maxima, मतलब वो यही फॉर्मूला यूज करना है 2 lambda d by a. So to find, they are asking you to find that is width of central maxima. So the distance between two first order minima is width of central maximum. This is what they're asking you to find, and formula you already know, I just told you. Width is 2 lambda d by a. ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन समझना था. तो 2 lambda d by a, so 2 into lambda is 546 into 10 power minus 9 into d is 0.4 upon a is 4 into 10 power minus 3. ये 1 जा, ये 10 जा, 10 पावर माइनस 2 ऊपर गया तो 10 पावर प्लस 2 होगा, मतलब 10 पावर माइनस 7 बचेगा. 546 into 2 is nothing but 545 is into 2 is 10901092, तो ये आएगा 1092 into 10 power minus 7 मीटर, तो ये आएगा आपका 1.092 into 10 power minus 4.
है ना, 10⁻⁻2 10⁻⁷ 1 जा और 10 जा, तो दिस शुड टर्न आउट टू बी मीटर में, हाँ ये मीटर में करेक्ट है, दैट इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ओके, ये मीटर में है। हमको mm में कन्वर्ट करना है तो वी कैन डू इट इन mm आल्सो, ओके, तो यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू mm एंड सो ऑन सो फोर्थ। बाकी कैलकुलेशंस आप देख सकते हो, बट दिस इज प्रीटी सिंपल। तो 40 सेंटीमीटर इज 0.4 मीटर, दैट इज करेक्ट। 2 into 546 into 10⁻⁹ नैनोमीटर में है, दैट इज करेक्ट। और नीचे था ए, हाँ यहाँ पे हुई मेरी गड़बड़, ये 0.4 mm जो है 4 into 10⁻⁻4 होता है, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ होगा यहाँ पे, ये होगा आपका -3, तो ये आपका आ जाएगा 1.092 mm, खत्म। तो बस पावर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, अदर थिंग्स आर फाइन, गुड। तो 1.1 mm अप्रोक्सीमेटली, 1.092 is approximately 1.1, so this is approximately 1.1 mm. So this is how you find out width of central maxima, right? Good.